हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। ओके, कैसे हो? गुड। कैसे हो? गुड। ओके, ठीक है। चलो, तो फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलावा सम्स वगैरह कुछ किया था कि नहीं? अरमान, सुन रहे हो मुझे? नो। चलो, and today we are going to about the next topic, but I will skip one point. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक छोटा सा पॉइंट मैंने स्किप किया था, आज वो हम करेंगे। और उसके बाद फ्रॉम इन दिस लेक्चर वी विल सी अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड one more topic, electric dipole, and from the dipole we will calculate the dipole moment. Okay, वो सब क्या है वो हम डिटेल से जब टॉपिक आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। फील्ड लाइंस में हमने देखा था और उसका वीडियो भी हमने देखा था कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी होता है फ्रॉम पॉइंट वन टू द अनदर पॉइंट, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। यदि आपको इसके अलावा कुछ याद हो तो बता दीजिए बेटा, कुछ फॉर्मूला वगैरह या फिर कुछ भी प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ भी आया था वो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, जितना भी चाहो उतना एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो एक्सप्लेन करो बेटा। टर्न वन बाय वन इफ यू वांट टू एक्सप्लेन मी, कुछ एक्सप्लेन करो। चलो। पॉजिटिव चार्ज में लाइंस आउटवर्ड्स एंड यस, नेगेटिव करेक्ट। चार्ज में लाइंस इनवर्ड्स। यस, इनवर्ड्स, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट द इट्स लेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए वी आर ड्राइंग अ लेंथ, इफ यू नो। We have draw a line. If the positive charge is, then the electric field lines will go to outward, outwards, outward, and it's gradually going to decreasing its length of electric field lines. So what does it show? वो क्या बता रहा है हमें इलेक्ट्रिक लाइंस की लेंथ? It shows that the as going to the outwards, the field intensity will be going to decrease. Yes or no? If the electric field lines, if we draw higher the length, it means the higher the electric field strength, intensity is more. And if the electric field lines is the smaller, then the intensity of the electric field is smaller. Then how to going to change? Which is there any formula? Yes or no? So let's for explaining you. For that, let's I am share a white screen with you. Okay, this is the whiteboard, and let's disable annotation. And one more thing. Okay, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि बेटे चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इंटेंसिटी, सपोज वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, so we have draw like this lines. See, the gradually the line length is going to decreasing. Yes or no? सुन रहे हो? यस सर। यस, तो रिप्लाई भी देते रहो likewise. So everywhere the field lines like this, positive or negative के लिए भी, and it will be inverse. So what does it show? Suppose the line length is short, that means field is weaker, and it here length is low, length
is not a short, but it's a large. So at that time, field is stronger. Clear है बेटा? Yes, sir. Okay. So if we choose, चलो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि if we draw any plane here, चलो हम कोई प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं. चलो मैंने यहाँ एक प्लेन ड्रॉ किया होगा और एक प्लेन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कहीं पे भी. तो देखो comparatively if you see here in both the field, the number of field lines are different. See, number of field lines are much more less to here. Field lines are lesser, and here field lines are higher. ठीक है, comparatively. So what happened and how its electric field, how change? Our question is that how change? Is there any relation? To explain this, let's go on next page. How change? Next page. If you want to take a screenshot, then take it. If not, no problem. So let's go next page. 11th का एक बेसिक मुझे करवाना पड़ेगा, यदि आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता. What do you know about the plane angle and solid angle? प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या है बेटा? पता है बेटा? प्लेन एंगल कब होता है एंड सॉलिड एंगल कब होता है? 2 dimension and 3 dimension. Yes, correct. Plane angle, if we measure an angle, suppose like this. Suppose we are measuring an angle here in a radian. In a radian, then this time the theta is measuring in radian and this is the plane angle. इसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल. अब सॉलिड एंगल कब बनता है? तो आपके पास कोई भी सरफेस है, चलो वी आर टेकिंग अ सर्कल एंड सर्कल में से हम कोई भी छोटा सा एरिया ले ले. चलो वी आर टेकिंग अ जस्ट स्मॉलर एरिया लाइक दिस. ओके, and whenever the angle is in a 3 dimension, when the angle is in a 3 dimension, see, जैसे कि चलो आप वाटरमेलन में से ऐसी एक चिप्स निकाल दो, तब जब भी छोटी सी चिप्स निकालेगो और आपको 3 डायमेंशन में कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा. दिस इज at that time we are saying it is a omega. Yes or no? This is solid angle. This is a solid angle here, and this is a cross sectional area, and it is its radius. And formula for this solid angle is given by theta equal to arc by radius. यानी कि theta, that means angle, याद रखना फॉर्मूला, मैं आपको याद दिलवा देता हूँ. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये सब 11th का है रिवीजन, ताकि हमें अभी छोटे से टॉपिक के लिए जरूरी है, एग्जाम के लिए तो नहीं लेकिन जानने के लिए जरूरी है. एंगल कितना बन रहा है बेटा? ओमेगा. आर्क यानी कि आर्क, यहाँ पे जो भी एरिया बन रहा है वो लेट्स से डेल्टा एस और एस. And angle is if very small, then it is d omega. D omega. ठीक है बेटा? Yes, sir. D omega. And the radius, suppose the radius is r, then it's the square of it, like this. So from this equation, the cross sectional area delta s is given by d omega
इंटू आर स्क्वायर, ऐसे हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल रहा है। ठीक है, Yes, sir. सर याद रख। हाँ बेटा, ओमेगा अकेला नहीं लिख सकते, डी ओमेगा क्यों लिखा? छोटा एंगल लिया इसलिए। इफ यू आर टेकिंग अ स्मॉलर एंगल हियर, इफ यू टेकिंग अ बिग एंगल, देन इट इज द ओमेगा ओनली। ओके ठीक है, दिस इज फॉर एंगल is very small. If the angle is large angle होता तो क्या होता बेटा? S equal to omega into r square. For angle is large. चलो ठीक है बेटा. D is for Okay. denoted that it is the small or whatever. See here you can write ds or delta s whatever. ठीक है, let's say ds. चलो क्लियर, याद रहेगा इतना? 11th का था पोर्शन। अब हमें एक छोटी सी टॉपिक समझने के लिए जरूरी, इसलिए मैंने करवा दिया। नाउ लेट्स गो ऑन 12th फिर से। चलो मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि चलो हमने दो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया और यहाँ पे और यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग। सो फॉर दैट लेट्स आई ड्रॉ वन मोर figure. Suppose we have a point charge is there, point charge, let's say q charge is there and positive, it is a positive, and from this we can draw a number of field lines are there. Field lines हम draw कर सकते हैं। चलो मैं field lines draw कर रहा हूँ। let's change the color. और एक डायरेक्शन में जाने वाला है बेटा, वैसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा। रामायण महाभारत दिखते हो ऐसा लग रहा है, नहीं? नंबर ऑफ एरोज निकल रहे हैं। चलो बहुत ही लाइन्स हो गई, नहीं रखा। चलो क्लियर। सपोज in this media we are taking a randomly two planes are there. चलो two plane ले लेते हैं randomly, कोई भी plane हम ले सकते हैं। ठीक है, for that let's one is here, sorry, and another ओके। आपको बेटा फिगर ड्रैग के ही पता चल जाता है कि सपोज टू प्लेन, इन दोनों प्लेन का कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं randomly whatever we like. Suppose at point here origin is O and where q charge is there, positive q charge is there, and the field lines is towards the outwards. चलो क्लियर। चलो मैं छोटे छोटे दो एरिया ले लेता हूँ। चलो here two area, suppose one plane is here and another plane is here. चलो suppose the plane name is given by R and S, whatever we like. चलो this is let's say R and S. चलो इन दोनों में से आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस में ज्यादा है, R में और S में? R में। यानी कि फील्ड में भी हायर, yes or no? Yes. Strong field is there and here weak, yes or no? Yes. Weak field.
चलो इतना क्लियर, Yes, sir. पक्का ना? Suppose now we are taking 2 point here. Suppose here point P1 and here point P2, and distance is let's say from origin here to P1 is let's say R1, and from origin to the point P2 plane is let's say R2 distance is there. So if we are measuring an angle, चलो origin से हम angle measure कर रहे हैं, चलो तो angle कितना बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ लाइन पास आउट हो रही है. So there will be an angle is here, okay, and that angle is let's say omega. Solid angle बनेगा बेटा, and the angle if is small, then we can say delta omega. चलो clear? Yes, sir. चलो तो हमें दोनों रीजन के लिए P1 रीजन और P2 रीजन के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे मिलेगा? अभी हमने इक्वेशन से कैलकुलेट किया था. इसके लिए एरिया क्या बनेगा बेटा? एंगल इक्वल टू आर्क रेडियस, यानी कि इसके लिए कितना होगा? P1 के लिए कितना Delta होगा? omega by R1. डेल्टा ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर. क्लियर है? हमने एरिया फाइंड किया. दिस इज फॉर एरिया. सी इन प्रीवियस सेक्शन यू कैन सी हियर एरिया है ना, एरिया इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस स्क्वायर. क्लियर? Yes, sir. सो फॉर सेकंड इसके लिए चलो एरिया क्या बनेगा? डेल्टा ओमेगा इंटू R2 square. R2 square. Number of field lines are passing through the cross sectional area is n. Number of field lines कितने बेटा? Just taking number is n. Okay? Yes or no? Yes, sir. So if n is the number of field lines passing through a cross sectional area from P1 or P2 surfaces. Okay, P1 और P2 में से surface area and its area is respectively, पहले हमें फिगर में लिखा है कितना बेटा? डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर एंड डेल्टा ओमेगा R2 स्क्वायर. चलो क्लियर इतना? Yes, sir. Okay. Now on the same time, number of field lines per unit area. Number of field lines per unit area at the same time is कितनी हो जाएगी बेटा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फर्स्ट के लिए n अपॉन डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर एंड n अपॉन डेल्टा ओमेगा R2 स्क्वायर रिस्पेक्टिवली. चलो क्लियर? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. Yes, sir. Okay, so see in both the section डेल्टा ओमेगा n आर सेम. जो लाइन यहाँ से पास आउट होने वाली वो भी इसी में से सेम पास आउट होगी. जो यहाँ से पास आउट होगी P1 में से वो P2 में से पास आउट होगी. सो इन शॉर्ट and
and delta omega is same for both the P1 and P2 plane. Hence, field is vary with 1 by r square factor. है ना, सिर्फ r square ही बचा. देखो प्रीवियस पेज में n and delta omega is common, so r1 and r2 square, so यानी कि it's vary by 1 by r square factor. Electric field यानी कि E is proportional to 1 upon r square. If the r is larger, then electric field is smaller. है ना? Yes, sir. Reciprocal है, दे दो, समझो बेटा. So if the you are going to infinite distance, then electric field will be very, very, very smaller or negligible. And if you are taking atom near, very near, then electric field is very, very strong. Clear? Yes, sir. याद रखोगे बेटा कि नहीं? Yes. Yes. तो ये सब Sir, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जाम में आएगा. एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है. एमसीक्यू और एमसीक्यू पर्पस, ठीक है, लॉजिकल है, इसलिए इसमें कुछ लिखना वगैरह कुछ है नहीं, फिगर ड्रॉ करना वगैरह कुछ है नहीं. आप लिखो क्या. तो इस चैप्टर में और कई क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं. चलो स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट टेक इट. सो प्रीवियस टाइम इसलिए मैंने इसको स्किप किया था ताकि थोड़ा उसका अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, इसलिए. नाउ द न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ फ्लक्स इज द न्यू वर्ड्स फॉर यू कि भाई फ्लक्स है क्या. तो लेट्स एक्सप्लेन यू कि फ्लक्स क्या है. तो देखो बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में से फील्ड लाइंस कैसे पास आउट हो रही है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो तो जैसे जैसे चेंज हो जाता है. सो सपोज द यू आर टेकिंग अ सम फील्ड इज देयर. चलो आप कोई एक डायरेक्शन में फील्ड ले लो. उसी डायरेक्शन में जो हमने फील्ड लिया है, अब उन्हीं की और डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में आप कोई भी छोटा सा प्लेन एंगल ले लो, सॉरी प्लेन एरिया ले लो कोई भी. सपोज मेरे पास, चलो सी हियर देयर आर माय फिगर्स आर देयर, फिंगर्स सी लाइक इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो दिस ऑल आर पासिंग इन दिस, सपोज इन एक्स डायरेक्शन. ओके, एक्स डायरेक्शन में पास आउट हो रही है बेटा. Yes, Yes or sir. no? Yes, sir. Okay, 1 minute. Okay. See, in x direction में से प्लस आउट हो गया. And suppose this is my plane. चलो मैं प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है. सो प्लेन में ये तो either ऐसे रख सकता हूँ. It can be either like this. It can be like either this. Okay. Clear है? This is my figure, so the electric field lines like in an x direction, likewise. Now, if we are taking any plane, suppose this is my plane. Plane की direction कैसे show करती है? तो जो भी plane है उसके perpendicular उसकी direction होती है. Suppose our palm, चलो इस palm की direction क्या हुई? तो straight way like this. ठीक है? तो इस plane की direction के लिए चलो मैं एक ball pen ले रहा हूँ. Suppose okay this. This pen shows the direction of this plane. Okay, ये प्लेन है और इसकी डायरेक्शन ऐसे हो रही है. अब चलो मैं यहाँ पे रखूं तो बताओ कि चलो प्लेन और मेरे फिगर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना है? 0 डिग्री. यस और नो? Yes. सी दिस ब्लैक बॉल पेन इज शोज द एंगल ऑफ प्लेन. प्लेन का एंगल शो कर रही है, ठीक है. हेलो. Yes, sir. And my figure shows the electric field lines. So see, both are, आपको
प्लेन परपेंडिकुलर लग रहा है, देखो प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बट द डायरेक्शन ऑफ plane is the same in the direction of electric field. Now see, it is going to change. It's make an angle theta, or suppose the angle is pi by 2, and this is the angle. See, likewise it is going to change. So what is change? फिजिकल क्वांटिटी हमें कोई ऐसे मिल रही है कि चलो भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी एक प्लेन ले लेते हैं, तो देखो बेटा इससे हमें नई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है, एंड दैट न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं इसलिए. सो इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स मल्टीप्लाई बाय द फंक्शन, यानी कि कौन सा फंक्शन ले रहे हैं हम, एरिया यानी कि E इंटू एस, ठीक है, छोटा सा एरिया है तो हम डेल्टा एस लेंगे. इफ इट इज द फुल्ली देन एस, कई बुक्स में ए भी लिखा है एरिया के लिए. सो E इंटू एस यानी कि इंटू एस, एंड दिस इज द not a vector quantity, this is a scalar quantity. So in between angle is cos theta. So this physical quantity is known as flux. पता चला बेटा? So इसके लिए चलो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ सिंपली. चलो let's I draw electric field lines, number of electric field lines here. Suppose these are the all electric field lines randomly we are taking. Okay, this is the electric field lines in any direction. Suppose we can draw in also another number of field lines हम ले लेते हैं different cases के लिए, because we are taking the different plane angle different हम लेंगे इसलिए. एंड द फील्ड लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस पे, वो सब याद रखिए बेटा. वैसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है. लाइकवाइज नाउ टेकिंग एनी प्लेन, चलो कोई भी प्लेन ले लेते हैं रैंडमली. सो लेट्स ड्रॉ प्लेन. चलो फर्स्ट प्लेन मैंने ले लिया ऐसा, रोटेशनल मोशन नहीं कर पा रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे मैंने ले लिया. और इस प्लेन की डायरेक्शन यही डायरेक्शन है, ठीक है बेटा, सेम. लेकिन हम प्रॉपरली ड्रॉ कर नहीं पाते. यदि मैं प्रॉपर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा. चलो मैं अपने हाथ से ड्रॉ करूँ. चलो ठीक है बेटा, ये प्लेन बना जैसे मैंने पहली फिगर में आपको एक्सप्लेन किया था वैसे ही एक डायरेक्शन में है. See, the electric field lines and the plane both are in a same plane. Clear है बेटा? यानी कि this is the delta S and this is the electric field. Both are in a same direction. वेक्टर ले सकते हैं. चलो यहाँ पे हम एंगल चेंज कर देते हैं. सेकंड फिगर लेट्स वी चेंज इट. We are taking a perpendicular, simple a perpendicular. See, like this. Okay, let's use a single line. चलो ऐसे मैंने ले लिया. So this is second case. Let's choose another case. Number of cases हम ले सकते हैं. Suppose now
one plane is like this, inclined, it makes some angle. See, इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बिटवीन कुछ एंगल बनता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दोनों के बीच में, सपोज दैट इज अ थीटा, we don't know the angle. There are so many cases are there. Let's take another angle, another plane. जाग रहे हो या फिर सो गए? No, sir. या फिर मुझे गाना गाना पड़ेगा, सुबह हो गए मामू मामू? चलो ऐसे, तो इसके लिए भी एंगल, इस सॉरी थिकनेस इज टू हाई, चलो इस डायरेक्शन में जा रहा है सपोज, सो देयर विल बी सम एंगल आल्सो हियर थीटा. चलो क्लियर बेटा, हियर एंगल ये तो दिखने वाला नहीं है, डिफरेंट एंगल इज देयर हियर मेकिंग एन एंगल, सो डिफरेंट एंगल हमें मिले. सो इन शॉर्ट सारे के सारे केसेस के लिए हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, बोलो. अभी हमने बताया था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर इक्विवेलेंट टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. यस और नो? Yes, sir. Number of electric field lines are equal to या फिर is proportional to चलो क्या हो जाएगा बेटा, इनटू डेल्टा एस. Proportional, and this is known and by flux. So delta phi is equal to E into delta S, where phi is the flux, electric flux. मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से पास आउट होता होगा तो ठीक है. और यू कैन आल्सो राइट E delta S cos theta, that is delta phi. If you want to total flux यदि आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, टोटल फ्लक्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, बोलो. Addition. इंटीग्रेशन या फिर समेशन कर सकते हैं, यस और नो? समेशन, Yes. लेट्स टेक इट समेशन, यानी कि सिग्मा. तो हमें क्या मिलेगा इनसे, वेर इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डेल्टा S डॉट, दैट इज टोटल फ्लक्स 5. See, flux, it is scalar quantity. वेक्टर नहीं है, देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, cos थीटा है ना? Yes. इन दोनों के बिटवीन जितना भी एंगल बनेगा उनके अकॉर्डिंग तो हमें फ्लक्स मिलेगा. डिफरेंट केसेस के लिए केस 1, केस बाद में देखते हैं. चलो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा बोलो, बताओ. इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, यस और नो? Yes. एंड सरफेस एरिया एस, दैट इज मीटर स्क्वायर. Meter square. ओके, और वन मोर यूनिट इज देयर. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मिनट, यस और नो? वोल्ट Yes. पर मीटर.
not a minute. Volt per meter, yes or no? Yes. Volt per meter into meter square, that is volt into meter. चलो पता चल गया बेटा? Yes, sir. ओके, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, कर दोगे ना? Yes, sir. वोल्ट के लिए पता ही है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम से उसके अकॉर्डिंग टू भी आप कर सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला. नाउ नेक्स्ट गो ऑन डिफरेंट केसेस. वी हैव इक्वेशन फ्लक्स 5 इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन है E डॉट ds या फिर डेल्टा s. ठीक है, और फ्लक्स 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds. एलिमेंट हम यदि छोटा सा ले लेते हैं, चलो इस फिगर में, इफ वी टेकिंग अ क्रॉस सेक्शनल लाइक दिस, वेरी 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 स्मॉल, छोटे से अमाउंट हम ले लेते हैं. चलो इनमें से पास आउट होता हुआ फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दिस डायरेक्शन, एक छोटी सी डायरेक्शन में कुछ पास आउट हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए हम जस्ट टेकिंग लाइक दिस, छोटा सा, इनकी डायरेक्शन में वेक्टर एन कैप, एंड दिस इज द स्मॉल एरिया डेल्टा एस. छोटा सा हम ले लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करें तो भी हमें फ्लक्स मिल जाता है. ठीक है, इक्वेशन याद रखोगे बेटा? इसमें देखो छोटे छोटे एलिमेंट का समेशन करना था फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में हमने इंटीग्रेशन कर लिया तो भी हमें मिल जाएगा. चलो डिफरेंट केसेस ले लेते हैं. केसेस फ्लक्स 5 इज इक्वल टू कॉमन फॉर्मूला ES cos थीटा. इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, एट दैट टाइम फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 यानी कि 0, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू 0. चलो क्लियर? Yes, sir. यानी कि परपेंडिकुलर हो तब. नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ES यानी कि मैक्सिमम. चलो ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, then flux is equal to minus E dot S because of cos pi equal to -1. Clear? ऐसे नंबर ऑफ हमें इक्वेशन मिलते हैं. देखो नंबर ऑफ केसेस पता चला बेटा फ्लक्स क्या है. सो फ्लक्स इज जस्ट अ नंबर कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास आउट रहे, दैट शोज अ फ्लक्स. ओके, Okay, sir. कोई डाउट बेटा फ्लक्स में? हेलो, if not then we are taking a new topic. देखो बेटा, so in short we have seen the flux, electric flux. ऐसा ही सेम आपको मैग्नेटिक फ्लक्स आने वाला है, तो वो भूल मत जाना कि मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी. तो उस टाइम जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, समेशन करेंगे, तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा. हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैव कैलकुलेटेड. क्लियर? Yes, sir. सर वो एग्जाम में आएगा उसकी थियरी? कुछ नहीं है. आई विल शो यू, आई विल टेल यू. लेकिन ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक स्किप करने हैं. क्वेश्चन तो मैं ही बताऊंगी, यही एग्जाम में आने वाले, वो तो मैं बता ही दूंगा कि ये 5 या 6 क्वेश्चन इस चैप्टर में से करो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी से सब कुछ स्किप कर दो. सीखना सब कुछ है,
ताकि एमसीक्यू में तो कोई भी पोर्शन ले सकते हैं, थ्योरी पोर्शन में तो मैं बताऊंगा, एमसीक्यू में तो वो कोई भी कई कोने में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे टॉपिक पे लिख रहा हूँ, यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए सारे केसेस मैंने ले लिए। ठीक है, बुक में ऐसा कुछ है नहीं कि चलो इस केस में क्या होगा, लेकिन हमने लिख दिया, पता चले कोई भी एमसीक्यू है, चलो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया इन डायरेक्शन में, तो फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम, मिनिमम। सर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर के वो एग्जाम में आएंगे? हाँ, एग्जाम में तो आएंगे ना, एग्जाम में तो आएगा। ठीक है, कौन सा आने वाला है वो भी मैं नंबर ऑफ बता दूंगा कि चलो इनमें से पॉसिबिलिटीज किसमें ज्यादा है, वो बता दूंगा, लेकिन वो लास्ट में मैं बताऊंगा। सभी चैप्टर फिनिश हो जाने के बाद चलो ये चैप्टर का पूरा तैयार कर दो। सर कल से ऑफलाइन है ना? हाँ, वो बता रहे थे सर, शेड्यूल कर रहे थे, कल से ऑफलाइन है, देखते हैं शेड्यूल कैसे अरेंज हो रहा है। ओके, चलो तो फिर लेट्स टेकिंग अ न्यू टॉपिक। ओ सॉरी, पेन भी कट गई है। सर हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट स्लाइड नंबर 3 का लेने का है। 1 मिनट वेट। कहाँ से बाकी है? स्लाइड नंबर 3। ओनली दिस वन? यस। ओके, डन सर। now the new topic is electric dipole. See, वर्ड्स पहले समझ लेते। डाई मीन्स टू, ठीक है। पोल, पोल वर्ड्स तो आपने मैग्नेट के लिए सुना होगा, हाँ कि नहीं? यस। हाँ, मैग्नेट में आपने वर्ड सुना होगा। चलो, उसमें पोल का मीनिंग क्या होता है? एन नॉर्थ पोल पोल और एस पोल, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो फिर ये तो इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक के लिए पोल, वैसा नॉर्थ साउथ तो है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक के लिए है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव पोल, नेगेटिव चार्ज मीन्स नेगेटिव पोल। इनकी उसको यदि हम कंबाइन करें, सो वी obtain a such a structure that is a dipole. डायपोल, जैसे ही एक मैग्नेट में ऑलवेज, कोई भी मैग्नेट हो तो ऑलवेज देयर इज अ टू पोल इज एग्जिस्टेंस, नॉर्थ एंड साउथ। Similarly, for in a electric field, sorry, there is a electricity, there is a, we have a structure like a positive charge and negative charge, so it combine and we obtain a dipole. But see, one contradiction is there. There is no existence of magnetic monopole. यानी कि मैग्नेट में कभी भी आपको सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ नहीं मिलेगा। नॉर्थ होगा तो साउथ होगा और होगा ही। अभी तक साइंटिफिकली कोई भी एविडेंस नहीं है हमारे पास कि चलो मैग्नेटिक मोनोपोल मिले, लेकिन इलेक्ट्रिक मोनोपोल यानी कि इलेक्ट्रिक ओनली सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव चार्ज मिल रहे हैं हम, है ना। वाई ऐसा क्यों है, नेचर में ऐसा क्यों है, वो नहीं पता, किसी को अब तक नहीं पता, लेकिन इट इज देयर। नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि लेट्स टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड टेक अ नेगेटिव चार्ज and line joining between them. Let's draw one line. Okay, and the distance between them, it's, let's say, from the center it is twice a, but it is a vector a because of one is half the a and another is also a.
It is for our convenient as given in book. There is a distance is between this is given is twice a. And suppose this is the positive Q charge and this is the negative Q charge. And the electric dipole small p is given as the distance between two poles, that is twice a multiplied by the value of any one charge, that is Q. Value मैंने बोले बेटा. So this is the electric dipole. चलो clear? Hello. Yes, So this sir. is the vector physical quantity. Second thing, इसके लिए यूनिट क्या बनेगा? 2a यानी कि मीटर, q यानी कि चार्ज यानी कि कूलम इंटू मीटर. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l t a. चलो कूलम यानी कि कूलम क्या क्या होगा? a1 t minus 1 I is equal to q by t. So q is equal to it यानी कि एम्पियर a1 t1 एंड मीटर के लिए l1. चलो क्लियर? नॉट कूलम पर. चलो पता चल गया बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला Yes, sir. एंड इट्स डायरेक्शन कहाँ होगी? तो नेगेटिव चार्ज टू दी पॉजिटिव चार्ज. यानी कि यदि मैं फिगर में आपको ड्रॉ करूं तो उसकी डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, चलो मैं ड्रॉ कर दूं नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि इस डायरेक्शन में मिलेगा. देखो स्मॉल p. पता चला बेटा? देखो Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन यहाँ पे देखो डायपोल मोमेंट इज p. ठीक है, p इज डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. चलो क्लियर? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन. चलो क्लियर बेटा? Yes, sir. पता चला कि नहीं क्या है ये सब मोह माया क्या है? सर डाइपोल मोमेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट में होगा. हाँ, अब आई बात समझ में. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव बट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव. चलो ठीक है बेटा? Yes, sir. एंड डायपोल मोमेंट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज. चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है वो बताएगा हमें, क्योंकि टू ए डिस्टेंस तो कुछ हमें एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन डायपोल मोमेंट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज. क्लियर है मेरी तरफ से? याद रखना. Yes, sir. ये नहीं याद रखोगे? हेलो. Yes, sir. लिख दो यहाँ पे. डायपोल मोमेंट shows the strength of a pole यानी कि a चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है, that shows डायपोल मोमेंट. कोई यदि पूछे, आप किसी को भी पूछना कि सर डायपोल मोमेंट क्यों जरूरी है, शायद ही कोई आंसर दे पाएगा. ये मैंने जो ब्लू लाइन ड्रॉ की है ना, वो
सर डाइपोल मोमेंट की क्या जरूरत है, अपने फ्रेंड को पूछना व्हाई वी नीड अ डाइपोल मोमेंट, बिकॉज ऑफ वी हैव ऑलरेडी चार्ज इज देयर, चार्ज तो हमारे पास है, चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करते हैं, तो हमें डाइपोल मोमेंट की क्यों जरूरत है। So my answer will be given this answer. Dipole moment shows the strength of a pole. कोई भी पोल की यानी कि चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है, that shows the dipole moment. Clear? Yes, sir. So let's save it and take a screenshot. अब देखो कल के टॉपिक में हम क्या देखेंगे, चलो डाइपोल मोमेंट्स के नियर, चलो मैं कोई भी पॉइंट लिख रहा हूँ, चलो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो मुझे फाइंड करना होगा, या फिर यहाँ पे रखूँ तो क्या होगा, यहाँ पे रखूँ तो क्या होगा, यानी कि हम जस्ट टेकिंग अ टू सेक्टर हम लेंगे, वन में यदि उसी की सेम लाइन में हो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है, और वन मोर थिंग, उसके परपेंडिकुलर सेंटर में से पास आउट हुई लाइन में यहाँ पे क्या होगा, तो हम कल के सेक्शन में देखेंगे। चलो कि क्या हमें डाइपोल मोमेंट मिल रही है उसकी सेम डायरेक्शन में, यानी कि उसी की डायरेक्शन में हो तो, या फिर परपेंडिकुलर हो तो, ठीक है। Okay, sir. वो सब हम कल देखेंगे। चलो तो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। चलो हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Thank you, sir. ओके वेलकम।